Hello class 10th. I am going to move with the next topic of your 7th chapter, that is area of a triangle, and this is the last topic. Now area of triangle formula you used to apply in your previous classes is area of triangle half into is equal to half into base into altitude. Then in your ninth class you have applied Heron's formula also. This is Heron's formula also you have applied. Now in 10th class another formula we are introducing, that is the when you are given the vertices of a triangle, vertices के coordinates दिए, like this is a triangle, we have marked it as ABC and its coordinates we have marked as x1 y1 x2 y2 and x3 y3. If these are given to you, how can you apply the formula to find out the area of this triangle? So formula is this, x1 y1 half, ये तो रहेगा ही, इंटू x1, देन बेटे मल्टीप्लाई करना है उस x1 को विद y2 माइनस वाई थ्री से, लाइक आई एम सपोजिंग एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम दिस ओनली. आपने इसको x1 माना, हाफ तो बाहर रहेगा, इस x1 को बाहर रखो, इन द ब्रैकेट यू विल डू इन द फ्रॉम नेक्स्ट टू पॉइंट्स में से y2 माइनस y3, देन प्लस what is it, x2 this time you will keep outside, then in the bracket it will be, इस y2 को नहीं हम छोड़ेंगे, नेक्स्ट टू में हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे y3 माइनस y1, देन इट विल बी x3 दिस वन, एंड देन इस y को नहीं आप छेड़ोगे, देन y1 माइनस y2. गॉट इट? सो दिस इज द फॉर्मूला रिटन हेयर, यू कैन नोट इट ऑल्सो फ्रॉम हेयर. दिस इज half x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. Now I am going to take a few examples for this application of this formula. Things will be very much clear to you. So example 11 is, find the area of triangle whose vertices are given, and vertices are what, 1 minus 1 minus 4 6 and minus 3 minus 5. The area of triangle we can find out by what? Directly he has moved to formula half. x1 क्या था 1, so he has put here 1. Then अगले दोनों में से y को subtract, 6 here 6, then minus 6 minus of this 5. तो minus of minus 5 will be what? Plus 5. So that's why 6 plus 5 हो गया. Plus next x2, तो वो क्या था बेटा? minus 4 is here. This is minus 4, then this is minus 5, this is here minus 5 of minus 1 which is given here, so plus 1 हो गया. So this is shown here minus 5 plus 1, then similarly minus 3 minus 1 of minus 6. So this is solving it simple. Half is outside, this is 6 plus 5 11, then 16 plus 21, so adding all you get 24 by 2, 24 by this is 48 by 2, that is 24. Now note one thing, suppose in any case this is 48 by 2 is 24, in any case if you are getting your answer negative, suppose ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर कैन बी डियर, लाइक आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. अगर नेगेटिव आंसर आता तो बेटा आपने ये मेंशन करना कि एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यू विल से एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव. सो एरिया हियर विल बी, जितना भी माइनस है उसी चीज़ को आप प्लस में बोलोगे. लाइक आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the points. On this time points are 5 2 4 7 and 7 minus 4. So we have applied the formula like this here, half into 5x बाहर लिया, then अंदर के दो, then this and so on. Finally we got the answer are minus 4 upon 2 is minus 2. But I have just explained you, so what he has written, he said since area is a measure which cannot be negative, we will take the numerical value of the area, that is minus 2 is 2. So therefore area of triangle is 2 square units. Got that? So अगर नेगेटिव में आता तो आप उसको पॉजिटिव में ही लिखोगे. देन थर्ड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 13th एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स, अगेन पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आपको दे रही है. नो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय द सेम फार्मूला वी हैव फाउंड इट आउट. नो दिस टाइम व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट द आंसर 0. बट अब किसी ट्राइंगल का आंसर 0 हो सकता है, किसी ट्राइंगल के एरिया का आंसर 0 हो सकता है. अगर उसका एरिया ही 0 है, इट मीन्स ट्राइंगल है ही नहीं. तो व्हाट डज ही इट मीन? ही सेड कैन वी हैव अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 0 स्क्वायर यूनिट्स. तो व्हाट डज इट मीन कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट्स, देन इट्स वर्टिसेस विल बी कोलिनियर. मीन्स व्हाट बेटा? देन इट्स वर्टिसेस विल बी कोलिनियर. व्हाट डज इट मीन? नाउ अगर तो कोई ट्राइंगल बेटा ऐसे है, vertices are not, I have taken vertices like 1 2 3 and it makes a triangle.
तो इसका तो एरिया 100% कुछ ना कुछ होगा। बट अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर मीन्स एक लाइन में, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो उनसे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा ना, वो तो एक लाइन बनाएंगे। सो व्हाट डज इट मीन कि कोलिनियर वर्ड मीन्स vertices will be or points will be in one line. So collinear means points will be in one line, so there is no triangle is making here. So अगर आपका now the two questions of from this concept can be risen. आपके दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। समटाइम्स आपको ये क्वेश्चन बोलेंगे प्रूव डेट, ध्यान से सुनो, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव डेट द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप क्या करोगे, हमने 7.1 में भी ऐसा क्वेश्चन करा था, बट वो मेथड अ लिटिल बिट लेंथी था। दिस इज ईजी। आप उन 3 पॉइंट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। अगर वो 0 आता तो आप बोलोगे सिंस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर प्रूव करने को बोलता है तो आप उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, तो वो 0 100% आएगा और आप बोलोगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर बोलते चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप चेक करो, अगर 0 आता है आंसर एरिया का तो आप बोलोगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज यू विल से पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो नाउ अनदर क्वेश्चन ऑन दिस बेस, ही सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अब उसने बोल दिया कि पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब क्या कि इनसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो वो 0 आएगा 100%। सो ही सेड सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय देम आर मस्ट बी 0, दैट इज व्हाट। सो वी हैव डन इट लाइक दिस, हमने इसका निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो उसको आप ऑटोमेटिकली पहले से ही एरिया ऑफ ट्राइंगल में कहीं जो भी के भी यूज़ हो रहा है तो होने दो, उसको इक्वल टू 0 डालो 100%, क्योंकि जब बोला पॉइंट्स को लीनियर है तो आप पहले से उसको इक्वल टू 0 डालो और फिर वहाँ से आप के की वैल्यू निकालो। तो यहाँ बाय चांस के की वैल्यू आपकी 0 आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि 0, या इट कैन बी 1 2 -1 -2, यहाँ के की वैल्यू कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव नंबर, कैन बी नेगेटिव नंबर ऑल्सो, बट द मैथड इज़ कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उसको पहले से इक्वल टू 0 डाल दो। गॉट इट। सो ही सेड लेट्स वेरीफाई आवर आंसर। तो उसने के की वैल्यू को 0 डाल के आंसर निकाला भी, तो फाइनली ही गेट द आंसर 0। तो इट इज़ क्लियर द पॉइंट्स आर कोलिनियर ही थे। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 15, ही सेड ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं, फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। नाउ we have done the area of triangle, we have not done the this quadrilateral का area, but क्या करना है बेटा, ए बी, आई हैव मेक अ क्वाड्रिलेटरल फॉर यू, ए बी सी डी लिया, इस ए बी सी डी के जो भी आपको पॉइंट्स दिए हैं वो आप ए बी सी डी के यहाँ पे पॉइंट्स लिख लो। नो इट्स योर विश, आप ए सी वाला डायगनल ज्वाइन करना चाहते हो कि बी डी। अगर आप ए सी का डायगनल ज्वाइन करोगे तो आप ए सी डी का एरिया निकालोगे और बी सी ए का एरिया निकालोगे और दोनों एरियाज यू विल फाइनली ऐड। और अगर आप बी डी का, लाइक इन बुक में उन्होंने बी डी का ट्राइंगल, बी डी की डायगनल ज्वाइन करा है तो उन्होंने ए बी डी निकाला, बी सी डी निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। गॉट इट। सो नोट वन थिंग हियर, वन इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यू कैन सी ए बी डी का एरिया निकाला 53 स्क्वायर यूनिट्स दे हैव गॉट, देन बी सी डी का एरिया निकाला 19 स्क्वायर यूनिट्स दे हैव गॉट। सो फाइनली दे हैव एडेड तो 72 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। बट नोट वन थिंग, सपोज बेटा यहाँ पे मेरा -553 आ जाता आंसर, या फिर यहाँ -19, कोई एक मैं बोल रही हूँ, या दोनों भी आप सोच सकते हो, -53। तो आप ये नहीं करोगे कि -53 + 19 आंसर नेगेटिव है, फाइनल आंसर आप पॉजिटिव करोगे कि नहीं एरिया तो पॉजिटिव होता है। नो, आप वो जो -53 आंसर आ रहा है उसको पहले से ही आप बोलोगे एरिया कांट बी नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव में लेके चलोगे। गॉट इट। ये नहीं कि आप फाइनल आंसर को पॉजिटिव में चेंज करना है, नो, जहाँ ही एरिया नेगेटिव आया, क्योंकि ये एरिया तो है किसी चीज़ का, अगर सपोज यहीं ये नेगेटिव आ गया तो आप बोलोगे एरिया कांट बी नेगेटिव, सो दिस इज़ +53, अगर सपोज आपके केस में आता है, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी करना है। गॉट इट। नाउ आई एम डिस्कसिंग एक्सरसाइज विद यू। एक्सरसाइज 7.3, फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, सो यू कैन डू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ऐसा हमने अभी एग्जाम्पल 14 में करा, वो सेम क्वेश्चन। Third question I am discussing, he find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are this and find the ratio of this area to the area of the given triangle. What does it mean better? Now see, I have drawn a triangle for you. A B C के vertices भी आपको दिए हुए हैं। Got it? Now उसने बोला D E F are the midpoints of these sides.
तो उसने बोला DEF से जो एरिया बनेगा, लाइक बाय जॉइनिंग दैम जो एरिया बनेगा, उस एरिया का भी आपने, उस ट्रायंगल का भी आपने, DEF से जो ट्रायंगल बना उसका भी आप एरिया फाइंड आउट करोगे, ABC का भी फाइंड आउट करोगे। ABC का तो यू कैन फाइंड आउट इजीली, आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, बट DEF का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा अब क्या है, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस AB। तो आई टोल्ड यू मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके x वाले कोऑर्डिनेट्स ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 0 इज़ वॉट 0, 0.2 इज़ वॉट 0, तो x का कोऑर्डिनेट तो D का क्या आ गया 0, देन -1 + 3 इज़ वॉट 2, 2/2 इज़ वॉट 1, तो 0 1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। सिमिलरली E 0 + 2, 2/2 इज़ 1, तो ये हो गया, देन -1 + 1 0/2 इज़ 0, सो E के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली F कोऑर्डिनेट्स यू कैन फाइंड 0 + 2 इज़ वॉट 2, 2/2 इज़ वॉट 1, 3 + 1 4, 4/2 इज़ वॉट 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आई हैव टोल्ड यू कि x वाले कोऑर्डिनेट्स आप ऐड करते हो बाय 2 और y वाले कोऑर्डिनेट्स आप ऐड करते हो बाय 2 करते हो, तो वो आपका एरिया, वो आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। गॉट इट? नो ईजी। अब आप ABC का एरिया निकालोगे, DEF का एरिया निकालोगे, दोनों एरियाज़ के उसने बोला जो आंसर्स हैं उनको डिवाइड करो बिकॉज रेशियो फाइंड आउट करनी, बट उसने बोला ध्यान से फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो गिवन ट्रायंगल तो ये था ना, तो आप पहले ऊपर इसका एरिया रखोगे, फाइनली एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC करके ये आंसर यू विल फाइंड आउट एंड यू विल गेट द आंसर। तो DEF का एरिया निकालो, ABC का एरिया निकालो यूजिंग द फॉर्मूला, दोनों एरियाज डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द वे सिंपल, यू हैव डन इन योर एग्जाम्पल 15। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। He said you have 5th question. You have studied in class 9 class 9th. There is a chapter 9 examples. He has given everything that a median of a triangle divides the triangle into two triangles of equal areas. Yes, you must remember हमने ऐसा क्वेश्चन करा है कि अगर आपको एक ट्राइंगल दे दें बेटा, सपोज हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, and this time he has given the coordinates of ABC also. This is 4 - 6, then 3 -2 B के हैं, और C के he has given 5 2। Now C, अगर हम ABC के कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो ही सेड आपको ये प्रूव करना कि अगर मैं इसका मीडियन ड्रॉ करती हूँ तो वो मीडियन इसको 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो व्हाट डू यू डू, आप मीडियन किसी भी वर्टेक्स से ले सकते हो। तो आई एम टेकिंग इट फ्रॉम सपोज C से ले लिया या A से ले लिया, B से ले लिया, तो आप मानो हमने A से एक मीडियन ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट, इसका मतलब अगर ये मीडियन है तो ये पॉइंट E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट हो गया BC का। सो E के कोऑर्डिनेट्स, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। E के कोऑर्डिनेट्स यू कैन ईजिली फाइंड आउट। E के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ये किसका मिड पॉइंट है, BC का। तो 3 + 5 8/2 4 हो गया बेटा, -2 + 2 0/2 तो 0 हो गया। तो E के कोऑर्डिनेट्स यू गेट 4 and 0। सो यू वंस फाइंड आउट एरिया ऑफ ABE एंड एरिया ऑफ ACE, दोनों का एरिया मस्ट कम इक्वल। हाँ, ये हो सकता है कि इसका आंसर -4 आ जाए और उसका 4 आ जाए, तो आप इसको बोलो कि ये 4 ही है। गॉट इट? तो दोनों का एरिया मस्ट कम इक्वल। तो दिस विल बी प्रूव्ड कि दिस विल प्रूव दैट मीडियन ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 7.3 and 7 chapter. So by Sunday, that is tomorrow, complete this chapter. On Monday we will start with new chapter. So complete this 7 chapter by tomorrow. Thank you. Have a nice